हेलो गाइस, योर वार्म वेलकम वंस अगेन इन इजी इकोनॉमिक सेशन। आज का ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके हर एक टाइप के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीए के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव कवर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स like forex, fixed and flexible exchange rate, free trade policy, protection trade policy, tariff and non-tariff barriers. Hope you will get the maximum benefit of this video. और एंड में हमेशा की तरह एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एंड कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर भेजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द प्लेस वेयर। फर्स्ट क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेक्स। तो क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? ऑप्शंस गिवन ओवर देयर। फर्स्ट इज वेरियस नेशनल करेंसीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड। yes, I think the first one is the correct answer. You must be knowing, you might have studied the foreign exchange market. So in the foreign exchange market, currencies are exchanged. Currencies of different countries are exchanged. So A is the correct option. Question number 2. Which one is not the functions of foreign exchange market? You might have studied foreign exchange market. In this chapter, functions of foreign exchange market is very important. We all know there are 3 functions of foreign exchange market: transfer function, credit function and hedging function. So all these 3 options, first 3 options are the functions of foreign exchange market. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है. So D will be the correct answer, that is selling and purchasing of goods. So D is the correct option. Question number 3, hedging operation helps. hedging एक फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का. तो hedging किस चीज़ के लिए यूज होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? hedging function helps in covering the risk. Because of fluctuation of foreign exchange rate, the hedging function is used to cover the risk. So C is the correct answer. Question number 4, what is exchange rate? Exchange rate क्या होता है? Is it foreign exchange, foreign currency, value of currency of a country in terms of value of currency of another country? Yes, C is the correct option. Exchange rate is nothing but the value of one currency in terms of another currency. अगर हम बोलते हैं कि ₹60 is equal to $1, it means 60 रुपीज़ का वैल्यू जो है वो डॉलर में $1 है. तो दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट. क्वेश्चन नंबर 5, if the exchange rate is changed officially from ₹60 equal $1 to ₹65 equal $1, then it will be known as. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है एंड इट इज ऑफिशियली अनाउंस्ड कि पहले 60 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 था, अब हम 65 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 करने जा रहे हैं, ऑफिशियली इट इज अनाउंस्ड, तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? सो दैट इज व्हाट विल बी द आंसर? यस, ए इज द करेक्ट आंसर. डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी. यहाँ पे डिवैल्यूएशन हो रहा है इंडियन करेंसी का इन टर्म्स ऑफ डॉलर. अगर ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता है और ऑटोमेटिकली होता है चेंज एक्सचेंज रेट, तो फिर उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी. बट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑफिशियली इट इज चेंज्ड, मीन्स डेलिबरेटली इट इज चेंज्ड, सो इट इज नोन एज डिवैल्यूएशन. तो डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी. Question number 6, which one is the demerits of fixed exchange rate system? You might have studied 2 types of exchange rate system, fixed exchange rate system and flexible exchange rate system. तो यहाँ पे आपको बताना है कि demerit क्या है fixed exchange rate system का. If we look at the options, option A, poor international cooperation. Is it the demerit of fixed exchange rate system? No, this is not the demerit of fixed exchange rate.
but this is the demerit of flexible exchange rate system. So A is not the correct answer. B, lack of certainty. No, fixed exchange rate system में certainty होती है, तो this is also not the demerit of fixed exchange rate system. Irrational speculation. Irrational speculation flexible exchange rate में ज़्यादा होता है, so this is also not the correct option. What is the D option? It does not provide for automatic correction in BOP. Yes, this is one of the most important demerits of fixed exchange rate system, क्योंकि fixed exchange rate system is not helpful in automatic correction of the BOP. So D is the right answer. Question number 7. Which of the following statement is not correct regarding exchange rate system? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मीन्स 4 में से 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगा और 1 इनकरेक्ट होगा, तो वो इनकरेक्ट आपको पता करना है. सो विल सी वन बाय वन द स्टेटमेंट. फर्स्ट वन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज रिजिड एज इट डज नॉट रिएक्ट क्विकली टू द मार्केट फोर्सेज. यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट रिजिड होता है और वो क्विकली चेंज नहीं होता है. सेकेंड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम promotes certainty and confidence among traders. Yes, this statement is also correct and this is the merit of fixed exchange rate system. C, automatic correction in BOP is possible under fixed exchange rate system. नहीं, ये सही नहीं है. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि दिस इज द demerit of fixed exchange rate system. Fixed exchange rate system में automatic correction in BOP is not possible. So C is the correct answer. अगर आप देखें फोर्थ ऑप्शन, fixed exchange rates require a large stock of foreign exchange reserves. Yes, this is the correct statement. So correct option is C. Question number 8. Which of the following is correct about flexible exchange rate system? There are some statements given regarding flexible exchange rate. आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है. We'll see the first option. Exchange rate is determined according to the gold content of currency. Is it correct? No, it is not correct. क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को. Under fixed exchange rate system, exchange rate is determined according to the gold content of the currency. Second option, exchange rate is determined by demand and supply of foreign exchange. Yes, this statement is correct. Actually, flexible exchange rate is determined in the market according to demand and supply of foreign exchange. So B is the correct option. Question number 9. Which one of the following is an argument for free trade policy? फ्री ट्रेड पॉलिसी का मेरिट आपको बताना है. आर्ग्यूमेंट फॉर फ्री ट्रेड पॉलिसी, तो क्या है वो? फर्स्ट ऑप्शन, प्रोटेक्ट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. नो, दिस इज रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी. सेकेंड, प्रमोट्स सेल्फ सफिशियंसी. नो, दिस इज ऑल्सो द मेरिट ऑफ प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी. हेल्प्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. दिस इज ऑल्सो फॉर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. What is the fourth option? Promotes efficient allocation of world resources. Yes, free trade policy promotes efficient allocation of world resources. So D is the correct answer. Question number 10. What is correct about the merit of free trade policy? Again, the question related to free trade policy. Statement A. Free trade policy benefits consumers by providing large consumption basket at cheaper price. Is it correct? Yes, this is one of the important merits of free trade policy. It provides large basket and choice of goods for the consumers. Second, free trade widens the size of the market. Yes, this is also correct statement regarding free trade policy. C, it prevents monopoly.
Yes, it is against the monopoly. It promotes competition in the market. So C statement is also correct. D, all are the merits of free trade policy. So correct answer is D. Question number 11. Protection trade policy refers. Protection trade policy क्या है? Option A, the policy which protects domestic industries from foreign competition by imposing different barriers on imports. Yes, this is protection trade policy. प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी में इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया जाता है बाय इम्पोजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर? इसमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है? ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरियर, यू माइट हैव स्टडीड टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर. तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है. विल सी द ऑप्शंस. ए, अ कोटा ऑन अपैरल. फर्स्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू कोटा, means that is the maximum limit of import. So this is non-tariff barrier. Okay, so this is not the answer. Second, a tax equal to 12% of value on imported oil. Yes, second option is regarding tariff barrier. It is talking about the tax imposed, import duty imposed on the imported oil. So this is tariff barrier. C, a voluntary export restraint on cars. VER, a very important non-tariff barrier. तो ये नॉन टैरिफ बैरियर है. डी, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी नॉन टैरिफ बैरियर है. तो नॉन टैरिफ बैरियर कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, क्योंकि ये टैरिफ बैरियर है. क्वेश्चन नंबर 13. द मेन डिफरेंस बिटवीन अ टैरिफ एंड अ कोटा इज. विल सी द स्टेटमेंट. A quota reduces quantity of imports more than a tariff. No, it can't be said like that. This is not the correct option. B, a tariff raises the price of imports more than quota. No, this is also not certain. C, a tariff does not harm foreign producers. ये भी हम नहीं बोल सकते हैं. D, a tariff generates government revenue while a quota, unless it is sold, does not. Yes, D is the correct option. This is the difference between tariff and quota. क्योंकि टैरिफ में इमीडिएट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, लेकिन कोटा में इमीडिएट रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है जब तक कि वो सामान सोल्ड नहीं हो जाए. तो D is the correct option. Question number 14. What is voluntary export restraint? इसको शॉर्ट में VER भी बोलते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट नॉन टैरिफ बैरियर है. तो क्या होता है ये? विल सी द ऑप्शन. इंपोर्टिंग कंट्री रिक्वेस्ट द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू रिड्यूस इट्स एक्सपोर्ट वॉलेंटरली. मतलब इंपोर्ट करने वाला जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री से रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना एक्सपोर्ट कम कर दो. ठीक है, तो वो एक्सपोर्टिंग कंट्री विलिंगली अपने एक्सपोर्ट को हमारे यहाँ आने से कम कर देता है. सो दैट इज नोन एज वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 15. गवर्नमेंट पॉलिसी दैट गवर्न्स इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट इज रिलेटेड टू कॉमर्शियल पॉलिसी. कॉमर्शियल पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी. सो सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 16. Protectionist policy. It is related to protection trade policy. So what will be the correct answer here? Encourage international specialization, promotes global production, helps prevent dumping, reduces government intervention in trade. Actually अगर आप देखें इन चारों ऑप्शन को, तो ऑप्शन A, B एंड D ये जो है फ्री ट्रेड पॉलिसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जबकि ऑप्शन सी दैट प्रिवेंट डंपिंग, प्रोटेक्शन ट्रेड
policy is against the dumping. So C is the correct answer. Question number 17. Countervailing duty specially aimed to. काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है? ये भी एक टाइप का नॉन टैरिफ बैरियर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कब इम्पोज करते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, नो। बी इंक्रीजिंग टैरिफ रेट ऑन इम्पोर्टेड आइटम्स, नो। सी प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू एक्सपोर्ट सेक्टर, नो, इट इज ऑल्सो नॉट दैट। डी न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ सब्सिडीज गिवन टू द प्रोड्यूसर्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया जाता है उस कंट्री के इंपोर्ट के अगेंस्ट जो अपनी एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, ठीक है। तो उस सब्सिडी के बेनिफिट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंपोर्टिंग कंट्री जो है वो काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देता है, जिससे कि उनका सामान यहाँ आने पे कॉस्टली हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. What is spot exchange rate? Spot exchange rate and forward exchange rate important concepts under the foreign exchange rate. So क्या होता है ये? First option, it is current exchange rate between two currencies. Yes, this is the correct option. Spot exchange rate, current exchange rate को बोलते हैं। Second option, it is the rate at which transaction of currency takes place in future at a predetermined rate. सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज अबाउट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। सो यहाँ पे आप ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे दो क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, स्पॉट एक्सचेंज के बारे में भी पता चलता है और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के बारे में भी। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 19. हेजर्स एंटर इनटू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू। हेजिंग फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो वो क्या करता है, वो रिस्क को कवर करता है। रिस्क क्यों होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में कंटिन्यूसली अगर चेंज होता रहता है तो देयर इज़ लैक ऑफ सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो उसमें ट्रांजैक्शन करने में रिस्क होता है, किसी पार्टी को ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो टू कवर दैट रिस्क हेजिंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। So option D is the correct answer. Question number 20. Under flexible exchange system, increase in the demand for foreign exchange will lead to. बहुत important question है। अगर ये question का आंसर आपको समझ गया तो काफ़ी concepts आपके clear हो जाएंगे related to exchange rate system. तो क्या होगा आंसर इसका, सोच के बताओ जरा। करेक्ट आंसर है डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। अब यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि डिप्रिसिएशन कैसे हो रहा है, कैसे पता चल रहा है कि डिप्रिसिएशन होगा। अगर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है अपनी कंट्री में तो कंट्री की करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। दिस डायग्राम शोज हाउ द एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो डी इज़ द इनिशियल डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड D1 इज़ द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो पहले एक्सचेंज रेट P पे फिक्स होता है एंड फॉर एग्जांपल सपोज P शोज ₹60 इज इक्वल टू $1, ठीक है। डिमांड बढ़ने की वजह से डिमांड का शिफ्ट हो गया राइटवर्ड को एंड नया एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ एट P1 एंड उस पर एक्सचेंज रेट हो जा रहा है सपोज ₹65 इक्वल $1। तो एक्सचेंज रेट तो बढ़ गया, लेकिन साथ में हम ये भी बोलेंगे कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू वो कम हो गई है, ठीक है। पहले जहाँ $1 के लिए ₹60 देना पड़ता था, अब वहाँ $1 के लिए ₹65 देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई है अगेंस्ट द डॉलर एंड दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ये क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया है, ठीक है। होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। नाउ इट इज टेस्ट टाइम। होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 21.
Which one of the following is known as a non-tariff barrier? ऑप्शन दिया हुआ है स्पेसिफिक टैरिफ, एडवॉल्रम टैरिफ, कंपाउंड टैरिफ, VER। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर है। इसका आंसर मैं नहीं दे रही हूँ, आप लोग गो थ्रू कीजिए। आई थिंक कहीं तो भी इसका आंसर आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा, तो इस वीडियो को वापस देखिए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर आप लिख डालिए। ओके, सो होप you have enjoyed the session. Thank you very much. Have a nice day.